بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ یہ کہانی ایک ایسے نافرمان بیٹے کی ہے جسے اپنے باپ پر ایسا تشدد کیا جسے سن کر آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا کہ کس طرح اس بیٹے نے اپنے باپ کو گدھا گاڑی بنا کر اس پر سبزی بیچنا شروع کر دی۔ پھر اس پر ایسا کون سا عذاب آیا، آئیے سناتے ہیں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ۔ اس واقعے کو آخر تک سنیے گا تاکہ عبرت حاصل ہو سکے۔ کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ کسان زمینوں پر کام کرتا تھا۔ وہ کافی نیک اور پرہیزگار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا، پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ تحفہ تو دیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی بیوی کو چھین لیا تھا۔ اس کی بیوی بیٹے کو پیدا کرتے ساتھ ہی اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ یہ غم کسان کے لیے کافی گہرا تھا، پر کسان نے پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود ہی اس بچے کو پالا تھا، اپنے ساتھ ساتھ زمینوں میں اس بچے کو بھی لے کر جاتا تھا اور اسے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے رکھتا تھا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اس پر کتنا ظلم کرے گا۔ کسان خود اپنا پیٹ نہ بھرتا، لیکن وہ اپنے بچے کو 2 وقت کی روٹی ضرور کھلاتا تھا تاکہ اس کا بچہ تندرست رہے۔ وہ اس بچے کو ہر ایک نیا کھلونا دلواتا تھا، وہ اس کی ہر ضد پوری کرتا تھا۔ اس بچے نے اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی اچھے اسکول میں جانے کی ضد کی تو کسان نے اپنی ساری جمع پونجی اس کے اسکول کی فیس پر لگا دی تھی۔ یوں وہ بچہ رفتہ رفتہ بڑا ہوتا گیا۔ کسان نے اس کی ہر ضرورت پوری کی تھی۔ اس طرح اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا وہ بیٹا جوان ہو گیا تھا۔ کسان کو اس پر تو فخر تھا، تبھی کسان نے اسے اپنے ساتھ محنت مزدوری پر لگا لیا تھا۔ اس کا بیٹا کافی ذہین تھا، تبھی بہت جلدی اس نے کام سیکھ لیا تھا، لیکن کسان کی نسبت وہ دوسرے کاموں میں بہت ہی پیچھے تھا۔ کسان 5 وقت کی نماز کا پابند تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی یہی نصیحت کرتا تھا کہ بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے۔ پر اس کا بیٹا اپنے باپ کی کوئی بات نہیں مانتا تھا اور دن بدن اپنے دوستوں کی صحبت میں رہتے ہوئے بدتمیز ہوتا جا رہا تھا۔ اب یہ روز اپنے باپ کے آگے زبان چلاتا تھا اور اسے یہی کہتا تھا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے مجھے گاؤں میں کیوں رکھا؟ تم مجھے شہر بھی تو لے کے جا سکتے تھے۔ کسان کا بیٹا جب ایسی بدتمیزی کرتا تھا تو اس کے باپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں کہ اس نے آج بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، پر یہ بچہ میرے آگے زبان چلاتا ہے۔ اس کے دوست احباب کسان کو یہی کہتے تھے کہ تم اس پر سختی کیا کرو اور اسے 2 ٹوک کہہ دیا کرو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور ایک تم ہو جو میرے آگے زبان چلاتے ہو۔ پر کسان نے کہا کہ نہیں، اس سے میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو کوئی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ کسان نے ایسا کر کے بہت بڑی غلطی کرتی تھی۔ اس ڈھیل کی وجہ سے اس کا بیٹا بگڑتا چلا گیا۔ وہ اب ایک عیاش انسان بن گیا تھا جو اپنے باپ کی زمین پر ہل تو چلاتا تھا اور محنت مزدوری تو کرتا تھا، پر اس کے علاوہ رات ہوتے ہی وہ شہر کی طرف چلا جاتا تھا اور شہر کی رنگینیوں کے مزے لیتا تھا۔ کسان اس کی راہ تکتا رہتا تھا۔ کسان کو ایسا لگتا جیسے وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دے گا تو شاید اس کا بیٹا سدھر جائے گا۔ یہی سوچ کر کسان گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کر لی اور وہ کہا جانتا تھا کہ اس کی بیوی تو اس کے بیٹے سے بھی 2 قدم آگے ہوگی۔ اس کی وہ ان پڑھ اور گنوار بہو اب اس کے بیٹے کو بگاڑتی تھی۔ اپنے شوہر کو تو وہ آنکھوں پر بٹھاتی تھی اور اس کی ہر بات پوری کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اپنے باپ سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس کی بہو آئے روز یہی کہتی تھی کہ میں تمہارے ابا کو اپنے ہاتھ سے بنا کر نہیں کھلا سکتی، تم جانتے ہو نا کہ یہ مجھ پر فرض نہیں ہے۔ کسان کا بیٹا اس کی باتوں میں آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے خلاف گیا تو وہ اس کی سنگت سے دور ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر کسان کا بیٹا اب اس سے مزید تلخ کلامی کرنے لگا تھا۔ آئے روز اس کو ستاتا رہتا تھا۔ جب کسان کافی ضعیف ہو گیا تو اس کی کمر جھک گئی تھی۔ اب وہ اپنی زمین پر جا کر کام نہیں کر سکتا تھا، تبھی اس نے اپنے بیٹے کو اپنی زمین دے دی تھی۔ اس نافرمان بیٹے کے نام جیسے ہی زمین ہوئی تو وہ آسمان پر اڑنے لگا تھا اور وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ جب کسان پر 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی، ایک روز بہو نے بچا ہوا کھانا کسان کو دے دیا۔ کھانا اتنا ٹھنڈا تھا کہ کسان کے کمزور دانت اسے چبا نہ سکے۔ کسان نے پیار سے اپنی بہو کو کہا کہ بیٹی، یہ تم نے مجھے بچا ہوا کھانا کیوں دے دیا ہے؟ کیا اب ایسے دن بھی دیکھنے پڑیں گے کہ میرے لیے تازہ کھانا بھی کم پڑ گیا ہے؟ کسان کی بہو واویلا مچانے لگی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ جب ہی کسان کا بیٹا گھر آیا تو اس کی بہو نے بڑھا چڑھا کر
उसे सारी बात बताई कि तुम्हारे अब्बा ने तो मेरी बहुत ही बदतमीज़ी की है। मैंने तुम्हारे अब्बा को ताज़ा रोटी क्या नहीं दी तो उसे अपने हिस्से के नवाले तक खिला रही हूँ, पर तुम्हारे अब्बा ने तो रोटी मेरे मुंह पर मार दी कि ऐसी रोटी बनाई है। ये सुनते ही किसान का बेटा तो तैश में आ गया। वो फ़ौरन ही अपने अब्बा के इस कमरे में गया जो कमरा कम और स्टोर ज़्यादा था। वहाँ पर सारा कबाड़ पड़ा हुआ था। इसने लात से वो दरवाज़ा खोला तो किसान सामने से टूटी चारपाई पर निढाल पड़ा था। बेटा कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी से ऐसी बात करने की। किसान कहने लगा कि क्या हो गया है, मैंने तुम्हें अपनी गोद में पाला था, तुम्हें रोज़ अपने साथ लेकर इस दरख्त की ठंडी छाँव में रहता था। क्या मैंने वो सब कुछ इस दिन के लिए किया था जब आप मैं इसका बेटा कहने लगा कि अब तुम मुझे गवाओगे कि तुमने मुझ पर एहसान किया था जो अब तुम मुझे जता रहे हो। तुम इसी को एहसान मानो कि तुम इस घर के अंदर हो। मेरा बस ना चले तो मैं तुम बाहर गली में फेंक दूँ। तुमने मेरी बीवी के साथ जो बदतमीज़ी की है वो मैं आइंदा बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहकर इसका बेटा फ़ौरन चला गया। जब किसान बेबसी के आलम में फूट फूट कर रोने लगा, रोते रोते वो सो गया। जब रात के किसी पहर अचानक किसान की आंख खुल गई क्योंकि किसान के बहू ने ठंडा पानी इसकी चारपाई पे गिरा दिया। किसी ने जैसे ही आंख खोली तो इसकी बहू उसे देखकर हंसते हुए कहने लगी कि बड़ा शौक है ना तुझे मेरे शौक की नज़र में मुझे गिराने का। अब तुम इस ठंडी चारपाई पर ही सोना। जो सर्दियों की सर्द तरीन रात किसान ने इस ठंडी चारपाई पर गुजार दी थी, लेकिन अगले रोज़ किसान को तेज़ बुखार हो गया। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पर कोई भी नहीं था जो इसकी फ़िक्र करता, जो इससे पूछता कि क्या तुम ठीक तो हो ना। किसान यूं ही रोता रहा। जब किसान की हालत बदतर हो गई तो हिम्मत करके वो अपने कमरे से बाहर निकला। अपनी बहू से कहने लगा कि बेटी खाने को कुछ दे दो। जब बहू की नज़र इस कचरे के ढेर पर गई जिधर वो ख़राब फल पड़ा था, बहू ने वो फल इस कचरे से निकाल के इसके मुंह पर मार दिया कि ये लो, ये खा लो, गुजारा करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर खाना है तो खा लो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे बेटे को बता दूंगी। किसान मजबूर होकर वही फल ले गया। वो ख़राब फल खाने की वजह से इसकी हालत और भी ख़राब हो गई। इनको लगता था कि इसका बेहिस बेटा उसे इतना ही तड़पाएगा, लेकिन हाथ तो तब हो गई जब अचानक ही एक शाम किसान का बेटा इसके कमरे में दाखिल हुआ। अपने बाप को वो खूनख्वार नज़रों से घूरने लगा, जैसे ना जाने इसने कौन सा जुल्म कर दिया हो। अपने बूढ़े बाप को इसने बाजू से खींचा और बाहर ले गया। किसान तो अपनी बीमारी की वजह से सही से चल भी नहीं पा रहा था, पर इसका बेटा उसे घसीट कर सहन में लेकर आया। सामने जैसे ही इसकी नज़र पड़ी तो वहाँ गधा गाड़ी का कुछ हिस्सा मौजूद था। ये देखकर तो किसान के होश उड़ गए थे। अपने बेटे से पूछने लगा कि बेटा तुम क्या करने वाले हो और गधा कहाँ गया है। जवाब इसका बेटा कहने लगा कि मेरा गधा बीमार हो गया है और मुझे ये सारी सब्जियां शहर लेकर जानी हैं। ये सुनकर तो किसान के रोंगटे खड़े हो गए थे। अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा कि इतना बेहिस ना बनो कि अल्लाह तुम्हें कभी भी ना बख्शे। किसान का बेटा कहने लगा कि तुम कौन होते हो मेरे और खुदा के मामले में बोलने वाले। तुमने आज तक किया क्या है मेरे लिए। सारा दिन तो तुम अपने बिस्तर पर पड़े रहते हो, मुझ पर भी बोझ और मेरी बीवी पर भी बोझ। इसीलिए अब वक्त आ गया है तुमसे काम लेने का। मेरा गधा बहुत ही बीमार है, पर अगर मैंने ये सब्ज़ी शहर ना भेजी तो काफ़ी खसारा होगा। इसकी वजह से अब तुम ही इस गधे की जगह मेरी मदद करोगे। ये कहकर ही इस जालिम बेटे ने अपने बाप को गधा बना दिया। वो अपने बाप को ऐसी हालत में गांव की गलियों में घुमाता रहा। इस आसपास के लोग ये दर्दनाक मंजर देखकर अस्तगफुरुल्लाह कह रहे थे और इस बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे तो बस अपनी सब्जियों की पड़ी थी कि कहीं उसे नुकसान ना हो जाए। पर आधे रास्ते ही इसका बाप फर्श पर गिर गया। जब इसके बेटे ने गुस्से से लाल नज़रों से उसे देखा और कहने लगा कि तुमने क्या किया है, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊंगा, जल्दी से अपनी हालत में आओ, अगर ना आए फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाप कहने लगा ऐसा मत करो, तुम पर अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब आएगा, इससे पहले ही सुधर जाओ। अभी किसान ने इतना ही कहा था जब इस जालिम बेटे ने अपने हाथ में थामी इस छड़ी से अपने बाप को घूट कर रख दिया, जैसे वो बाप ना हो वो सच में गधा ही हो। ये मंजर सारे गांव वाले देख रहे थे, पर इन गांव वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस जालिम बेटे को रोक पाते, क्योंकि जितनी इस बेटे की ज़मीन थी उतनी गांव में किसी की भी नहीं थी, जिसकी वजह से इसकी अपनी ही दहशत थी। कोई भी इसके आगे मुकाबला नहीं कर पाता था। पर वो बेटा ये भूल गया था कि वो ज़मीनें पहले इसके बाप की ही थी। वो अपने बाप को इसी हालत में छोड़कर जैसे तैसे करके शहर चला गया। जब एक भला इंसान वहाँ से गुजरा, इसने जैसे ही किसान को इस हालत में देखा तो फ़ौरन ही उसे उठाया और अपने साथ साथ अपने घर लेकर किसान को बेहोश हो गया था।
बेहोशी में वो अपने बेटे को याद कर रहा था। जैसे ही उसे होश आया तो उसके दोनों हाथ आसमान की जानिब उठे और वो रो रो कर कहने लगा, क्या मेरे अल्लाह मेरे बेटे को सुधार दे, मेरे बेटे पर बड़ा वक्त ना लाना, वो जो भी करता है वो इसकी नादानी है, तुम इसका बदला इससे ना लेना। इसको तकलीफ़ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, इसके जुल्म तो मुझे बर्दाश्त हो जाएंगे पर इसकी तकलीफ़ मुझे भी बर्दाश्त नहीं होगी। इस भले इंसान ने जैसे ही किसान की दुआ सुनी तो तड़प कर कहने लगा कि तुम होश में तो हो, बेटा दरिंदा बनकर तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करता है और तुम हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। जवाब में किसान कहने लगा कि नहीं, वो कैसा भी है मेरा बेटा है, वो मेरा खून है। हाँ वो भटक गया है लेकिन मुझे उम्मीद है वो ज़रूर सीधे रास्ते पर जाएगा। भले इंसान को काफ़ी गुस्सा आया कि एक तो मैंने इसकी मदद की है और उसे अपने घर ले आया हूँ, लेकिन ये तो फिर भी अपने बेटे के गुण गा रहा है। इसने फ़ौरन ही किसान का बाजू थामा, इससे लेकर इसके बेटे के घर चला गया, लेकिन कहने लगा कि अगर तुम्हारे बेटे ने फिर से ज़रा भी तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की तो तुम मेरे पास आ सकते हो, पर मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा बेटा कभी नहीं सुधरने वाला। ये कहकर भला इंसान वहाँ से चला गया। किसान वापस अपने घर आ गया। जैसे ही सामने नज़र पड़ी तो उसके बहू बेटा पैसे गिन रहे थे जो किसान ने सब्जियां बेचकर कमाए थे। बहू ने अपने शोहर को कहा, तुम्हारे अब्बा की वजह से ये सब कुछ हो सका है, अगर तुम्हारे अब्बा गधा बनकर तुम्हारी मदद ना करते तो तुम कभी भी ये पैसे ना कमाते, इसलिए 50 रुपये अपने अब्बा को दे दो। इस बेटे ने अपनी बीवी की नाफरमा बर्दारी की, 50 का नोट अपने बाप के मुंह पर मारा। किसान ने वो नोट वापस अपने बेटे को थमा दिया। इसका दिल खुश हो गया था, शायद उसे लगा था कि इसका बेटा सुधर गया है। यूँ खुशी खुशी वो अपने कमरे में चला गया। दिन यूं ही तेज़ी से गुजरते जा रहे थे। किसान की हड्डियां सूख गई थीं। किसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। आए रोज़ वो खांसता रहता था, पर किसान के बहू और किसान के बेटे को इसकी इस हालत से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता था। बल्कि एक रात तो इसकी बहू ने तमाशा बना दिया। वो अपने शोहर को कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा ने खांस कर हमारा जीना हराम कर दिया है, अपने अब्बा को तुम किसी और एज होम ले जाओ ताकि इस बला से जान छूटे। ये तो कुत्तों की तरह खांसता रहता है जिसकी वजह से मैं रोज़ रात को डर कर उठ जाती हूँ। किसान का बेटा गहरी सोच में पड़ गया। अगले दिन भी किसान ऐसे ही खांस रहा था जब अचानक से इसके बेटे ने इसके कमरे का दरवाज़ा धड़म से खोला और कहने लगा, क्या कुत्तों की तरह खांस रहे हो? अब अगर आइंदा तुमने खांसा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। किसान बहुत परेशान हो गया। वो अब अपनी खांसी को रोकने की बहुत कोशिश करता था पर इसका सांस उखड़ने लगता था। कभी बर्दाश्त से बाहर होकर वो फिर से खांसी लेता। जब एक रोज़ फिर से किसान का बेटा इसके पास आया और कहने लगा, अब ये कुत्ते की तरह तुम बाहर जाकर खांसना। अपने बाप को बाजू से पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। किसान रोते मुँह जा गिरा था। इस लम्हे किसान की बर्दाश्त खत्म हो गई थी। तब ही वो अपने बेटे से कहने लगा कि मैं कुत्तों की तरह अगर खांसता हूँ तो अल्लाह तुझे भी दिखाएगा कुत्ता कैसा होता है। ये कहकर किसान को वही भला इंसान याद आया। कहाँ से चलना दो बार था पर वो जैसे तैसे करके उसे भले इंसान के पास चला गया। उस इंसान ने जैसे ही किसान को अपने दरवाजे पर देखा तो पहले तो मुस्कुरा दिया क्योंकि उसे 100% यकीन था कि किसान वापस नहीं आएगा। वो बड़ा इंसान किसान की बेटी की नीयत को पूरी तरह जानता था। तभी इसने किसान का बाजू थामा और किसान को अपने घर के अंदर लाया। अपने कच्चे मकान में एक साफ सुथरा कमरा उसे दिया। किसान के थमने का नाम लिए नहीं रहे थे। जब इस बड़े इंसान ने किसान की आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे पास आई हो, देखना मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। किसान कहने लगा कि कौन हो तुम, मेरा ख्याल क्यों कर रही हो? मेरी सगी औलाद ने मुझे घर से निकाल दिया तो तुम मेरे कुछ नहीं रखी, फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जवाब में हमारा इंसान कहने लगा कि जो तुम्हारे साथ बीत रही है वो आज से 10 साल पहले मेरे बाप के साथ भी गुजरी थी। मैं बाहर के मुल्क रहता था। अपने बाप को अपनी बीवी के साथ छोड़ने की मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, पर मेरी बीवी ने मेरे बाप पर बहुत ही तशद्दुद किया था। मैं जैसे ही वापस आया तो मेरी बीवी से पूछने लगा कि मेरे अब्बा कहाँ हैं। वो कहने लगी वो तो मर गया है। इसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपने मुँह को बालों से खींचकर उससे पूछा कि वो कैसे मरे, पर मेरी बीवी ने मुझे कुछ ना बताया। जब मुझे अपने हमसाये से अपने बाप की दर्द भरी दास्तान सुनने को मिली कि तुम्हारा बाप तो रोज़ रात को तड़पता रहता था, रोज़ रात को इस पर तुम्हारी बीवी तशद्दुद करती थी, ये सुनते ही मेरा वजूद कांप उठा। मैंने अपनी बीवी को तलाक की धमकी दी, अगर तुमने अपनी ज़ुबान से सच ना बोला तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। बीवी ने मुझे सारी दास्तान सुना दी थी। मुझे अपनी बीवी पर काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन इससे ज़्यादा गुस्सा मुझे खुद पर था। मैंने अपने बाप को इसके साथ छोड़ने की गलती क्यों की थी? मैं अपनी बीवी पर काफ़ी भरोसा करता था, लेकिन इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। इसने मेरे बाप पर काफ़ी तशद्दुद किया था, पर मैं जब अपने बाप से पूछता था कि क्या तुम आप ठीक हैं तो वो मेरा बाप
साफ वीडियो कॉल पर मुझे मुस्कुरा कर जवाब देता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी फिक्र किया करो, अपनी खुराक वक्त पर खाया करो, अपना ख्याल रखा करो। मेरा बाप मुझे ढेरों दुआएं देता और मेरी बीवी भी मुझे कुछ ना बताती, बट मेरी बीवी ने जैसे ही मुझे अपने कारनामे सुनाए तो मैंने फ़ौरन उसे तलाक दिया और इस पर क्या क्या कर दिया। मैं आज भी पछताता हूँ कि काश मेरा बाप मेरे साथ होता। किसान ने जैसे ही शख्स की बात सुनी उसे काफ़ी फख्र हुआ कि बड़े इंसान ने इंसाफ से काम लिया। किसान अभी उसे बड़े इंसान के साथ रहता था। वो बड़ा इंसान इसका बहुत ख्याल रखता था, उसे खाना भी वक्त पर देता, बल्कि उसे दवा भी देता था। किसान काफ़ी बेहतर हो गया, पर उसे अपने पोते और अपने बेटे की भी याद आई। लेकिन शायद वो इस बददुआ को भूल गया था तो उसने आखिरी वक्त पर अपने बेटे को दी थी। 3 साल जैसे ही गुजरे तो किसान की रूह तड़पने लगी कि वो अपने बेटे से मिले। तब भी वो फिर से अपने घर चला गया। इसने इस भले इंसान से कोई जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था अगर भले इंसान को इसने बताया तो वो फिर से इस गधा इसके घर जा रहा है जिधर इस पर तशद्दुद हुआ है, तो वो ज़रूर इससे नाराज़ होता। किसान जैसे ही वहाँ गया तो उसने ये देखा कि एक औरत जो इसकी बहू थी